بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، قلب مطمئن ہے، الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آؤ جی، یہاں بیٹھ جاؤ آرام سے، آرام سے بیٹھو۔ آپ بھی آؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی پریشانی، آرام سے بیٹھو، بھائی بات آرام سے۔ حالات کا تغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سننا ہے آپ، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، آرام سے۔ مردوں کو جب جہاں قبرستان میں بندہ کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، مردوں کو زور زور سے کوئی تقریر کرتا ہے، مردے تو ہیں قبرستان میں، مردے ہی ہوتے ہیں، زور زور سے تقریر کرتا ہے، اور اسے تقریر کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں علاقے میں سب ہیں، وہ کچھ بدعنوانی دیکھ رہے ہیں اور سب خاموش ہے، تو مردہ ہی ہیں بھائی صاحب، مردہ ہی ہیں، وہ تو سارے مردہ ہیں، قبرستان میں رہ رہے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ لیکن بندے کا فرض بنتا تھا سمجھانا، کہ بھلے ہی مردے نہ سمجھیں تو دوسرے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مردے نہیں سمجھیں گے تو دوسرے سمجھیں گے۔ سمجھ رہا ہو بھائی صاحب، آپ بھی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ میں بھائی اپنے خیالات سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے خیالات سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کس کو بٹھا رہا ہے بھائی، ادھر بھی بٹھا لیا ادھر بھی، بھائی اپنے خیالات سے۔ خیالات ہیں نا، ادھر سے بھی آتے ہیں، ادھر سے بھی، ہر طرح سے خیالات آتے ہیں ذہن میں۔ تو خیال آ رہا تھا بھائی صاحب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ندیم میاں، آرام سے اپنی عبادت کرو، جتنا چیخنا تھا چیخ لیا، مردوں کو جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا، نہیں سمجھیں گے لیکن ہاں الحمدللہ دوسرے مردے سمجھ جائیں گے، یعنی دوسرے مردے نہیں، دوسرے مردے کون سے؟ جنہیں ہم مردہ کہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور جو ہم جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ بھیجا تھا دنیا میں، وہ تو پتہ چلا وہ خود مردے ہو گئے، پتہ چلا وہ خود مردے ہو کے پڑے ہوئے ہیں آرام سے، انہیں سمجھانا بیکار ہے۔ ہاں سمجھاتے سمجھاتے اللہ تعالیٰ دوسرے مردوں کو زندہ کر دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا آؤ تم ادھر بیٹھ جاؤ، تم بھی آؤ، تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ، میری بات سن لو، مطلب میرے خیالات سے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے خیالات سے، بیکار ہے۔ کیونکہ جب گھر کا آدمی چور ہوتا ہے نا، تو باہر کے چوروں کو پکڑا نہیں آتا بھائی صاحب، وہ اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ وہ جو محکمہ، جو پولیس کا محکمہ ہے سمجھا بدعنوانی کو، چوروں کو پکڑنے کے لیے، رہزنوں کو پکڑنے کے لیے، بلاتکاریوں کو پکڑنے کے لیے، پتہ چلا وہ خود چور ہے، وہ خود چور ہے۔ تو جب گھر کا آدمی چور، تو چور کو نہیں پکڑا جاتا باہر کا، کیونکہ جب باہر کے چور کو پکڑو گے نا، جو جن کی جیل، جن کے ہاتھوں میں جیل ہے، جو جیل کا محکمہ سنبھال رہے ہیں، پتہ چلا وہ خود چور ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہیں گے بندہ اپنے گلے میں توق ڈال لے اور ایمان اور جان کے خطرہ ہو، وہ تو پھر وہاں خاموش ہو کے بیٹھے جاتا کہ یوں کر کے، یوں۔ ہاں اپنے اسباب پیدا کیا جاتا ہے اختیاری، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پولیس محکمے کا، بھائی صاحب چوری ہو رہی ہے پکڑ لو، سمجھائی، وہ کہتا ہے بھائی کیا کہہ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے تو؟ آئی سی یو میں کھڑا ہے تو، ایک مریض سے بات کر رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، کوما میں، تو کیا تجھے کچھ پتہ نہیں؟ ہم آئی سی یو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوما میں گئے ہوئے ہیں، تو بیکار اپنا وقت برباد کر رہا ہے، جائے یہاں سے، خاموش ہو کے بیٹھو۔ حالات کا تغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ بھائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی اسباب کو نہیں دیتے، مسبب ہے اللہ تعالیٰ تو، وہ اسباب تو خود بلانے والے ہیں۔ اب سوچو سارے اعمال سب کے خراب ہیں، وہ حالات تو بدلنے نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اسلام غالب ہو کے رہے گا اور ہر گھر میں کچے میں پکے میں پہنچ جائے گا دنیا ختم ہونے سے پہلے، اور دنیا میں امن کر کے دکھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، تو میں کیا پاگل ہوں بھائی صاحب، میں پاگل ہوں کیا؟ خاموش ہو کے بیٹھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بندوں کے طفیل و صدقے میں پورے ہندوستان کی کیا پوری دنیا کے کائنات کو پلٹنے کے قادر ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھ بھائی۔ ابھی اس روئے زمین پہ ایسے بندے ہر وقت موجود رہیں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی، کہ وہ ان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، پھر تغیر ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر وہ کچھ دعا کر دیں، وہ بندے روئے زمین پہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، ان کی قسم کو اللہ تعالیٰ، ان کی قسم کو پورا کرنے والے کون؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے آرام سے بیٹھو۔ کیا نیلی پہن رکھی ہو، یا ابھی میں نے کل خاکی پہن رکھی تھی؟ جمعہ تھا نا پرسوں، خاکی پہن رکھی تھی، نیلی پہن رکھی ہو یا خاکی پہن رکھی ہو؟ یہ بھی اترے گی جب میلی ہو جائے گی، تو خاکی بھی اترے گی جب میلی ہو جائے گی، تو تیسری آ جائے گی۔ تیسری کون سی آئے گی؟ کوئی سی بھی آ جائے گی بھائی صاحب، کوئی سی بھی پہن لو نکال کے، بہت ہیں، 10-15 ہیں۔ نیلی میں
पुरानी हो गई, बदबू आ रही है उतार दो, खाकी पहन लो, खाकी पुरानी हो गई उतार दो, तीसरी पहन लो। भाई साहब क्यों परेशान होते हो? टेंशन लेने का नहीं है भाई साहब इसमें। मैं क्यों लूँगा टेंशन? मैं तो देखो चेहरा भी माशाल्लाह कितना अच्छा है। धनाधन गोलियां मार रहे हो इस मिसाइल की ज़बरदस्त, घर में घुस के प्लानिंग करके। कल एक बिरयानी आई कहीं से, बहुत कहा वालदा साहब ने कि बिरयानी खा लो, मतलब अच्छे घर से आई और हलाल पैसे से आई। मैंने नहीं खानी, तो मैंने सोचा कोई चीज़ घर में आई है कहीं से तो खा लेनी चाहिए। शरीयत के उसूल ये है, वो नुकसान कम पहुँचाती है। मैंने पढ़ा कि बुज़ुर्गों का माकूला है, तो मैंने सोचा जब सब नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊंगा, जाहिर बात है। लेकिन बेटा बैठ गया खाने के लिए, खाई, मैंने भी खाई। बेटा पहले देखा, इन्हें खा लिया, उसी में से निकाला है, तो मैंने उसी में से निकाल के खाई। लेकिन आईपीएस का दिमाग था, उसने एक बोटी उसमें से ले ली, बची दो बोटियाँ, उसमें से मैंने एक बोटी ले ली, शायद दूसरी भी ले ली थी, छोटी छोटी थी। पता चला चालाकी थी, उन्होंने कहा बोटियों में ही डालना, बिरयानी तो पूरी पड़ी हुई है सारी। बच्चा बिरयानी खा रहा है, बोटी वो ले ली बच्चे ने पहले ही, उसे बता कौन सी बोटी लेनी है, अब बची दो बोटियाँ यही खाएगा, बोटियों में डाल देना भाई साहब। आईपीएस का दिमाग हुआ इसमें। चलो बोटियाँ मैंने खा ली, तबीयत बिगड़ी मेरी, लेकिन इतनी बिगड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें भी पढ़ ली घर में, और तस्बीहात भी पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर ली थी। उसके बाद फजर की नमाज बा जमात पढ़ी, अल्लाह ताला ने पढ़वाई। नहीं तो तबीयत वो ऐसी थी पहले जब कभी बिगड़ी थी कि उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो गया था, मरते मरते बचा था। ये ज़्यादा डोज दी जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला ज़्यादा डोज को कम में और कम कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं। जितनी ख़तरनाक मिसाइल मार रहा हो वो भी बेअसर कर रहा है अल्लाह ताला, जितना तगड़ा हथियार लिया हो वो भी बेअसर कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात कादिर मुतलक है, नाफ़े और ज़ार है। कुछ बंदे दुनिया में सब पे विलायत होती है, हर मुसलमान के पास विलायत। कलमा को है, कलमा पकड़ लिया, इकरार कर लिया कलमे का, तो विलायत हो गई। तो जो उसमें ख़ास होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी विलायत थोड़ी अच्छी होती है। जो उलमा कराम होते हैं, स्वालीन होते हैं, इल्म के साथ चलते हैं, उनकी विलायत कुछ और होती है। उनमें जो बहुत शौक़ पैदा करते हैं, इश्क, उनकी विलायत कुछ और होती है। जो इश्क में और इश्क पैदा करते हैं, वो फिर ख़ास मंजूर नज़र में होते हैं अल्लाह तबारक तआला की, यानी वो अख़सुल अख़स होते हैं, यानी ख़ासुल ख़ास, बंदों में भी ख़ास। समझ में आई जहन नशी? एक होता है एम, एक होता है पारदर्श, मतलब काउंसलर है, उसके बाद एक होता है एमएलए है, फिर उसके ऊपर आता है एमपी है, फिर उसके ऊपर आता है सीएम, फिर उसके ऊपर आता है मिनिस्टर, फिर उसके ऊपर आता है होम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर के ऊपर पीएम। समझ गए? ऐसे ही महकमे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आई बात है? अभी तो आराम से बैठिए, सब मैंने बता रखा है, कैमरे लग चुके हैं, आप अपने आप ही देखिए भाई साहब। मैं क्या जाके पुलिस डिपार्टमेंट में बताऊंगा भाई साहब इस तरह पकड़ा जाता है चोर को, इस तरह पकड़ा जाता है, ये सामने इस तरह पकड़ा जाता है, तो भाई साहब क्या मैं क्या दिमाग में मेरे क्या फतूर है? ए भैया का मेरे दिमाग में फतूर समझ लिया आपने? नहीं, आराम से बैठेंगे, आराम से, टंका वक्त पे आ जानी है सब चीज़। हाँ, अगर सस्पेंड हुए सस्पेंड ही तो हो जाएंगे, कमा लिया बहुत पैसा हमने, आराम से बैठ के खा लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, कोई बैंक में डाल देंगे, इंटरेस्ट आता रहेगा, बहुत बढ़िया। देखो सुनो एक बात बोल रहे थे, सारे जो है ना जाहिल हो जाएंगे, 2 मिनट में लिखना भी नहीं आएगा। बड़े बड़े एमबीए करे हुए हैं, बैंक में बैठे हुए हैं, एमबीए करके ही तो बैठते हैं ना। समझ में, वायरस आ गया, खुदा ना खास्ता वायरस आ गया कंप्यूटर में, फिर बैंक कैसे चलेंगे? लिखना आता ही नहीं, खाते बनाने सीखे नहीं, कैश बुक, लेजर, जर्नल, वाउचर, ये सब आते ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में एंट्री खुद हो जाती है। टेली सीख लो, बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, सारी सिस्टम में एंट्री अपने आप आगे फॉरवर्ड होती चली जाती हैं। खुदा न खास्ता वायरस आ गया है, लिखना आता नहीं, ना खाते सीखे। पहले के ज़माने में खाते होते थे, हमने भी बैंक ऑडिट किया है, पहले खातों में जाके चेक किया जाता था। कौन कह रहा हो ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? जब आदमी रूह आती है, ज़मीन पे पैदा होती है, अपने आप होगी पैदा है। आपने मेहनत करी, बीज ज़मीन में डाल दिया, वो बीज जब जब ज़मीन में डाला, आपने अपने आप काम कर दिया। अब जो बीज पौधा बन के निकलेगा, फसल बन के निकलेगा, वो कौन निकाल रहा है? अल्लाह ताला। लकड़ी का पेड़ होता है, सब लकड़ियाँ होती हैं, उसमें जो लकड़ी में से जो फल निकलता है वो ऐसे निकला है अपने आप है। बारिशें वक्त हो रही हैं, अपने आप ही हो रही हैं भाई साहब हैं, 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 हैं। और धूप निकल रही है, अपने आप निकल रही है। सर्दी गर्मी अपने आप हो रहा है। क्या कह रहे हैं किस्सा? सिद्धू मूसा वाले को मार दिया, इनकाउंटर करवा दिया, ताकत थी है। हमने सोचा इसका भी करवा देंगे। 4 साल से लगे हुए ना, 15 साल से बल्कि। जब मैं गया था गुजरात, वहाँ पे सॉरी चंडीगढ़, जब मेरा 4 साल का बच्चा था, वहाँ से आया, बच्चा किडनैप हो गया, मिल गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों परेशान होते हो भाई साहब? क्यों परेशान होते हो?
ڈی این اے ٹیسٹ بتائے گا بھائی صاحب. ڈی این اے ٹیسٹ جب سب کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے، جب رپورٹس آپ کے ہاتھوں میں اپنے آپ آ جائے گی. ہاں اپنی آپ آ جائے گی بھائی صاحب، کون کس کے بچے کتنے 4 اپنے ہیں یا نہیں، کسی کو تو پتہ چل جائے گی بھائی صاحب. شریعت کے ہٹ کے چلو گے یہی ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ توبہ توبہ. اور ڈاکٹروں سے دوائیاں لو جا کے. چنڈی گڑھ میں مجھے پیشاب کی ضرورت ہوئی بس اڈے پہ. بھائی کھڑے ہو کے تو پیشاب کر نہیں سکتا میں. اب لیڈیز ٹوائلٹ میں تھا، بیت الخلاء جو بزی تھے، جینٹس وہ بزی تھے. تو میں نے اس سے کہا جو وہاں بیٹھتا ہے سویپر، وہاں پہ ٹوائلٹ کے واش روم کے باہر بیٹھتے ہیں نا، جو پبلک کنوینئنس ہوتی ہے، پبلک کنوینئنس لکھا ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا سر میں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہوں، کرتا میں پہنا ہوں، آپ لیڈیز جو جو واش ٹوائلٹ ہے اس میں جانے دیجیے. انہوں نے کہا چلے آؤ، کوئی لیڈیز آئے گی میں روک دوں گا. 2 ٹوائلٹ تھے اس میں لیڈیز کے، اس میں چلے آؤ، اگر کوئی لیڈیز آتی ہے میں روک دوں گا. جب میں نے اس میں پیشاب کرنے بیٹھا نا، میں لیڈیز ٹوائلٹ میں کواڑ بند کر کے بیٹھوں گا، جب دیواروں پہ میں نے دیکھا چوک سے کیا لکھا ہوا تھا، وہ بتا نہیں سکتا میں چوک سے کیا لکھ رکھا تھا. بھائی صاحب یہ ڈاکٹر سے مل کے آر ایس ایس وہ کام کر رہے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آر ایس ایس کے لوگ ڈاکٹر سے مل کے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے وہ کام کر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بتائیں کیا کر رہے ہیں، میں بتا نہیں سکتا موبائل پہ. اس لیے لوگ ہیں نا بس الماظ اللہ، وہ سمجھ رہے ہیں یہ بیماریاں ہمیں لگی ہیں. آپ کو بیماریاں نہیں لگی، لگائی جا رہی ہیں. آپ کو بیماریاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کی عورتیں خود بخود بگڑیں. اور کس کو وہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ زیادہ دھارمک لوگوں کو کیا جا رہا ہے. انہیں دھارمک لوگوں سے ہی خطرہ ہے، ہندوستان کو دھارمک لوگوں سے ہی خطرہ ہے. جو دھارمک داڑھی والے نا ان سے ہی خطرہ ہے ان کو. تو بھائی جو پڑھ لکھ کے ہوتے ہیں نا وہ یہ بات سوچتا ہے، اگر وہ یہ بات نہ سوچ کے اپنے کاروبار کو ہی سوچے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، تو بیوقوف ہے وہ سب سے زیادہ. کہ وہ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کاروبار کرتے رہو، بچوں کے بارے میں سوچتے رہو، اپنی کمیونٹی کے بارے میں، اپنے فلاں بہت کے بارے میں مت سوچو. پتہ نہیں چلا آپ کو کتنے لوگ مار رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا. کوئی کہہ رہا ہے شوگر ہو گئی بھائی صاحب، کوئی کہہ رہا ہے پروسٹیٹ بڑھ گئے، کوئی کہہ رہا ہے ہارٹ کمزور ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی صاحب یورک ایسڈ بڑھ گیا، کوئی کہہ رہا ہے بی پی ہائی ہو رہا ہے. ہوتے رہو بھائی صاحب دوائی، کیمسٹ کی لائن لگے رہو، کیمسٹ کی دکان پہ کھڑے رہو، دوائیاں لیتے رہو. ہاں بہت بڑھیا بھائی صاحب. ہاں دور رہو بیوی سے، 40-50 کے بعد دور رہو بیوی سے. ہاں بس صحیح بتا رہا ہوں میں. آر ایس ایس نام ہے اس کا. آر ایس ایس، آر ایس ایس مینس ریپس سوشل سروسز. انڈرسٹینڈ؟ آؤ پولیس والا سن لے گا تمہاری بات؟ نہیں. ایس سی بھی سن لے گا؟ نہیں. ڈی سی بھی سن لے گا؟ نہیں. ڈی آئی جی سن لے گا؟ نہیں. کیوں؟ یہ سب آر ایس ایس کے آدمی ہیں، سب آر ایس کے آدمی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سب انہیں تو پلاننگ کر کے آئی پی ایس آئی ایس سے، بڑے بڑے میجر کرنل سے پلاننگ کر کے گاؤں کا آدمی 25,000 کا گاڑی میں بٹھایا، 40 گاڑی کھڑی کر دی، 40 آ رہے ہیں. آدمی 40 بہت ہیں یار، بس تو 40 میں ہی بڑھ گئی. اڑا دو بھائی، گاؤں کھڑی تو ہے، مار دو. کس کا حکم ہے؟ ارے صاحب کا حکم ہے. صاحب کا صاحب کا حکم ہے. ہاں خاموش. صاحب کا حکم ہے بھائی صاحب، چپ چاپ ہو جاؤ. صاحب کے حکم نے تم نے اپنے بچوں کو مروا دیا ہے. صاحب کا حکم ہے اپنے بچوں کو مروا دو نا. نہ بھیا میرے بچے ہیں. تو وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ اپنے بچوں پہ آئی تو میرے بچے ہیں، وہ کس کے بچے تھے؟ صاحب کا حکم پہ آپ نے بچوں کو مروا دیا. اپنے بچے کو مرواؤ نا. صاحب کا حکم ہے اپنے بچے کو گولی مارو، چیتڑے اپنے بچے کو اڑواؤ. مذاق بنا لیا تم نے چچا، چچا مذاق بنا لیا ہے، بہت مذاق بنا لیا. پولیس محکمہ کام نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں اس بندے کو. یہاں کی آرمی کام نہیں کر رہی، کوئی پرواہ نہیں اس بندے کو. اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے طاقت. میں نے ایک بزرگ کے یہاں دیکھا، ایک اولیاء اللہ، وہ سو رہے تھے. میں نے دیکھا رجال الغیب ان کے پاس خدمت کے لیے موجود تھے آس پاس. رجال الغیب انسان کی شکل میں. جبھی سمجھ گیا تھا یہ بات ہے کم سے کم 15 16 17 سال پرانی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا یہ سب جو ان کے آس پاس چلتے نظر آ رہے ہیں نا، حجرے میں جا رہے ہیں اور پھر نکل رہے ہیں، بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں. یہ سارے رجال الغیب ہیں، حضرت کی حفاظت کے لیے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف پھر رہے ہیں. اولیاء اللہ جب زمین پہ ہوتا ہے نا، جو اللہ کے مقرب بندہ ہوتا ہے، سوتے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. رجال الغیب ہوتے ہیں. اب آپ سوچو بڑے بڑے کیسے شہید ہو گئے ان کے. یا اللہ تعالیٰ نے تدریجاً زمانے کو چلانا ہے. سب کو شہید کیا، میں حضور کی حال کو شہید کر دیا. آپ کے رہیں گے، آپ پھر اپنا منطق لگائیں گے، پھر اپنا دماغ لگائیں گے. اور بھائی اگر یہ چیزیں نہ ہوتی نا تو اسلام پوری دنیا میں شروع میں ہی پھیل جاتا. اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس طرح تدریجاً گریجولی دنیا کو نہیں چلاتے، اپنی مطلب لوگوں کی عقل پہ چھوڑ دیتے، تو دنیا میں اسلام پہلے ہی پھیل جاتا. اسلام نام ہے غیب کی چیز پر ایمان لانا بغیر دیکھے. اسلام نام ہے بغیر دیکھ کے ایمان لانا، اور پھر اس پر محنت کرنا. جب محنت کرو پھر دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت تمہارے ساتھ میں کیا ہوں. اب تم نے مجھے مانا، میری شریعت پہ عمل کیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کتنی مدد کامل کرتا ہوں.
जब तू चलेगा दिल बर्दाश्त हो गया रुए ज़मीन पे चलेगा, तुझे कोई खौफ नहीं होगा। जानवर चीरा फाड़ी करने वाले सप्पा की शेर वो भी डरेगा तुझसे। हाँ, बड़ी बड़ी जिन्नात भी डरेंगे तुझसे, क्योंकि तू मेरा मुकर्रब बंदा। जिन्नातों पे गालिब इंसान है, इंसानों पे, फरिश्तों पे भी, यानी फरिश्तों से बढ़ के निकल गया इंसान। क्यों? फरिश्तों के अंदर एक तबीयत में क्या रखा है? मिलान। फरिश्तों के तबीयत में मिलान नहीं है गुनाह करने का, सिर्फ वो इबादत के लिए मुकर्रर हुए हैं, जो नूर से पैदा हैं। फरिश्तों के यहाँ मिलान नहीं है गुनाह करने का, इसलिए उनकी पकड़ नहीं है। वो तो नेक है नेक। इंसान के अंदर, तबीयत के अंदर मिलान रखा है हर गुनाह करने का। उसके मिजाज के अंदर मिलान है कि हर गुनाह कर सकता है। वो गुनाह से बच के चलेगा तो फरिश्तों से आगे निकल गया, गुनाह से बच के चलेगा तो फरिश्तों से आगे निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले कम खाने में बरकत दे देते हैं अल्लाह ताला, कम सोने में बरकत दे देते हैं। रूहानियत होती है उनकी अल्लाह वालों में। कम खाने में बरकत, कम सोने में बरकत। समझ भाई, फैज़ होता है उनका, बुजुर्गों का जो बिलवास्ता मिलता रहता है, हुजूर अकबर की बिलवास्ता मिलता है। समझ में आई बात? अभी अल्लाह ताला धीरे धीरे समझा रहे हैं तुम्हें, इस्लाम की ताकत को धीरे धीरे समझा रहा है गैरों को, कि समझ जाओ भाई तुम मेरे ही मखलूक हो। मैं तुम्हें एकदम नहीं मानना चाहता, एकदम नहीं मानना चाहता। जब नहीं समझ रहे हो अब आ जाओ। जब बेटों को हर तरह से समझाया जाता है ना, नहीं समझता, तब बाप आखिर में अंजाम उसका गोली मारने का होता है। समझ में आई बात? जब कोई लड़की घर से भाग जाती है, मिसाल के तौर पर छोटी उम्र में ही, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर बालिग नहीं है, कोई भगा के ले गया, भाग गई, उसको 5 साल बाद पता चला उस बाप को कि वो कोठे पे बैठी हुई है, किसी कोठे पे, तो बाप बेवकूफ़ होगा जो उसको वहाँ से निकाल के घर पे ले आएगा। वो खामोश होकर सब्र कर लेगा, क्योंकि उसकी तकदीर में वही लिखा था। यानी 8-9 साल की उसको कोई लेके भाग गया, पता चला 5-8 साल बाद पता चला, जब वो ऊँची होगी 17 साल की हुई कि कोठे पे बैठी है, तो वो लेने नहीं जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको वहाँ से लाना अपने पूरे माशरे को ख़राब करना, अपनी बहुओं को, अपनी और बेटियों को, तो वो तो बिगड़ चुकी, उसके जहन में गंदगी फैल गई, गंदगी। जब किसी लड़की या किसी बीवी या किसी वो बिगड़ जाती है ना, तो वो बिगड़ ही जाती है, उसके दिमाग में वो सारी गंदगी हर वक्त रहती है उठते बैठते, तो वो फिर सुधर नहीं सकती। फिर जब सुधरेगी, शुरू में ही सुधर जाए तौबा कर ले, या तो अपनी जान दे दे या तौबा कर ले, नहीं तो वो नहीं सुधर सकती। जब कोटे पे कोई औरत आ जाती है ना, या तो जान दे दे बचने, वहाँ से गंदगी से बच जाए, या वहाँ से निकलने की कोशिश, नहीं तो फिर वो हमेशा वहीं बैठी रहती है, निकल ही नहीं सकती, क्योंकि उसको गंदगी में मज़ा है, तो गंदगी में उसको बहुत मज़ा आ रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, तो वहाँ से निकलेगी नहीं, हमेशा उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ गंदगी भर गई। सारी बातें बता दी, सारी बात। इसलिए हर आदमी घर परेशान है। मैंने देखा एक सामान, एक औरत दुकान पे खरीद रही है, उसकी 7 साल की बच्ची खड़ी हुई दुकानदार वाले को इशारा कर रही है, वो नौकर सामान दे रहा है, वो औरत मुखातिब है, नौकर दे, दुकान वाला फ्री है थोड़ा, तो उन्होंने बच्ची पे निगाह डाला। मैंने बच्ची को देखा, उन्होंने सोचा ये तो और कहीं देख रहा है, उसी में उन्होंने निगाह डाली, बच्ची ने डाली, बच्ची मुस्कुरा के उसको इशारा कर रही है। 7 साल की बच्ची एक बॉयफ्रेंड बना रही है 20 साल के आदमी लड़के को। क्यों? माँ का ये तरबियत है, माँ की तरबियत है। माँ, जो औरत खुद दोस्त बनाए, अपने बॉयफ्रेंड बनाए, तो वो अपनी बच्ची की क्या हिफाजत करेगी? कर लेगी? वो 8 साल की उम्र में दूसरे को दे देगी, ले भाई तू भी मजे ले। जो औरत खुद नेक होती है ना, वो अपनी बच्ची को बचाती है गलत जगह बैठने से, सही तरह पढ़ाई संस्कार देगी। जो औरत ही खुद बॉयफ्रेंड में रही हो शुरू से ही आखिर तक, तो बच्ची को क्या बनाएगी? कुछ नहीं। तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं, खामोश होकर बैठो। अल्लाह के बंदे ने छोड़ दिया, अल्लाह पे तगय्युर अल्लाह ताला अपने आप कर देंगे, मुझे कोई चिंता नहीं। बास्केट नीली है, खाकी पहनूंगा, ये मैली हो जाएगी, खाकी भी हो जाएगी, तीसरी आ जाएगी, क्यों चिंता करते हो? आराम से बैठो, दीन का काम करते रहो, जो कर रहे हैं यही दीन का काम है। अल्लाह ने यही दीन का काम दिया, तौबा तौबा, कि क्या तकबीर वाला से नमाज़ पढ़ लो, और पहली सब में नमाज़ पढ़ लो, और थोड़ी तस्बीहात पढ़ लो, किताब पढ़ लो, उसके बाद पर ख़त्म, आँखें बंद करके चलते रहो, कहीं भी बैठे रहो, कुछ भी होता रहा। सारे अशार जो पढ़े हैं ना, राहत अंदूरी ने, वो सब इसी के मुतालिक किए हैं, और थोड़ी मजदूबियत थी, जो भी तो पढ़ गए। हमारा घर है, तुम्हारा भी होगा। कोई ऐसे अशार कहे मुझे, दूसरे के अशार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और जो मैं अपने कहता हूँ अपने कहता हूँ, जो दिल में आते हैं। वो अशार का उर्दू है आसान, ये बहुत तकरीर होगी, अब ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब मत करना, ये सब तकरीरें नहीं डाल रहे, अब ये पता नहीं क्यों खामोश हो गए। मैं तो खामोश हूँ, आप अपनी सोचो, आप खामोश हो गए या चीख हो, या धाड़ हो गया है, क्या हो गया, मेरा कारोबार कहाँ गया, इतना पैसा कमाया था, अब ये जाता नज़र आ रहा है, वो आप सोचो भाई, अपनी सोचो, कोई फिक्र नहीं। सल्तनतें अल्लाह ताला बनाते हैं, कब बादशाह को फ़कीर बनाते हैं, कब फ़कीर को बादशाह, किसका गोदाम खाली हो जाए खुद सर पे रख के भागे। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई साहब, क्या क्या लेके भागोगे सर पे? जब गिरफ्त हो गई खुदा न खास्ता, मकान लेके भागोगे,
क्या बैंक बैलेंस एक्सेल सारा निकाल के भागोगे, रात में वैसे ही लूट लोगे, लूट लिया जाएगा। बैंक में भी ऑर्डर आ गए कि कोई भी 10,000 से 15,000 से चेक से कैश मत देना किसी को। तो भाई मैनेजर तो उसकी मानेगा जो पीएम बैठे हुए हैं। भाई साहब पीएम साहब के ऑर्डर आ गए कि 10-15,000 से ज़्यादा कैश निकाल नहीं सकते, करंट में से भी और सेविंग से भी। और एटीएम अब बंद हो गए, पेमेंट आ नहीं रही कहीं से, मशीनें ख़राब हो गई, ऑर्डर आ गया एटीएम में पैसा नहीं मिलेगा। तो भाई साहब और वायरस अलग आ गया इसमें, कंप्यूटर में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े खतरनाक भाई साहब हैं। और जब वायरस आ गया, अब बताओ कहाँ से बैंक में एंट्री हो जाएगी, सोचा है कभी? नहीं होगी भाई साहब। वायरस आया हुआ, कहाँ से पैसे निकाल के दें, पता ही चल रहा आपके अकाउंट में कितने हैं। फंस गए भाई साहब। चालाक आदमी चालाकी में मारा जाता है। वमा करूँ वमा करुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कुरान की आयत है। वमा करूँ वमा करुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब है कौन सा कहाँ पर अमेरिका में ब्लास्ट हुआ था, प्लान के जरिए है, कौन सा कहाँ पे किया था, उड़ा दिया था पूरा। हाँ, सारी प्लानिंग थी, रख दी थी दूसरे पे के आतंकवादियों ने कराया, आतंकवादियों ने कराया। वहाँ के बड़े बड़े कौन, वहाँ के जो लेक्चरार हैं उन्होंने तोड़ दिया। भाई साहब ये खुद की उनकी प्लानिंग थी, बदनाम करना था इस्लाम को। उस दिन सारे यहूदी छुट्टी पे थे, उस दिन सारे यहूदी छुट्टी पे था, रख दिया। उसामा बिन लादेन ने करवाया, उसामा बिन लादेन ने उसको मार भी दिया, कहाँ से गिरफ्तार किया। सब प्लानिंग होती है, कैमरे मैन उनके, मीडिया उनका, जी वो मार के उसे समुद्र में फेंक दिया। तो भैया जहाँ चलती हो वहाँ चला लेना अपनी, जहाँ चलती हो वहाँ चला लेना। सद्दाम हुसैन पे चलती थी, चला दिया, फांसी दे दी आपने। हाँ, यहाँ पे चल रही है आपकी, चला रहे हो, जिसका चाहे इनकाउंटर कर रहे हो, जिसको चाहे डाल रहे हो पकड़ के। और सिद्धू मूसा वाले पे चला दिया अपनी। हर किसी पे नहीं चलती भाई साहब, हाँ हर किसी पे नहीं चलती। ज़रूरी नहीं कि हर किसी पे चल जाए आपकी चचा। मैं चचा समझ रहा हूँ मेरी बात को। हाँ, वक्त पे तनख्वाह आ जानी है, वक्त पे तनख्वाह आ जानी है, आराम से बैठे रहो। जाड़ा बहुत पड़ रहा है भैया, जाड़ा बहुत पड़ रहा है। तनख्वाह जाके लाने में बड़ा जान की आफत आ रही है, तनख्वाह लाने में जान पे पड़ रही है। अगर गलती से चले भी गए, ना मिलेगी ओढ़ने को रज़ाई, ना मिलेगी ओढ़ने को रज़ाई। सारी रात खड़ा रखेगा कि साहब आ रहे हैं, इंतज़ार कर मेरे भाई। पता चला है 4 आदमी कंधे पे चरपाई उठा के ला रहे हैं घर में, 4 बंदे चरपाई उठा के ला रहे हैं घर में। सारी औरतें कह रही हैं हाय क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया मेरे भाई। ये तो शेर है भाई साहब, उल्टा हो गया दूसरा कह लो, हर तरह का मौजू का शेर है। औरतें कह रही है क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया मेरे भाई। बहनें कहेंगी भाई साहब, माँ बाप तो मर चुके होंगे, बीवी कहेगी हाय क्या हो गया मेरे मियाँ भाई, हाँ मियाँ क्या हो गया मोहन भाई। क्या बेटियाँ कहेंगी क्या हो गया अब्बा, अब्बा क्या हो गया। मेरा मजाक उड़ाओगे तुम, मेरा कुछ नहीं उड़ाओगे। ये तो अल्लाह ने और बना दिया, तकालीफ से ही तो बनाया। पढ़ने पढ़ाने से इतनी अल्लाह अपना खुद नहीं देते, जितने परेशानियाँ डाल के जो बंदा सफ़र करता है तब देते हैं अल्लाह को। सुनेंगे और सुन लो बात, क्योंकि हो सकता है अब 4-5 दिन तक खामोश जाऊँ, वो तो मेरे हाथ में नहीं है बोलना बालना, वो तो अल्लाह ताला बुलवा रहा है भाई साहब। मेरी क्या हस्ती, मैं क्या बोलूँ। मेरी आज नई ज़िंदगी है, कल नहीं थी, आज नई ज़िंदगी दे दी मुझे भाई। रोज़ाना नई ज़िंदगी दे रहा है अल्लाह ताला मुझे। सुनिएगा अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं हमेशा अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा हूँ, हमेशा मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ और हम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रत ज़ुन्नैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हें कैद हो गई थी जेल में उस ज़माने में। हर वक्त में तकालीफ उठाई है बुज़ुर्गों ने, वो भूखे रहते थे। एक उनकी मुरीदी थी मोहतरमा, उन्होंने खाना बना के भेजा, उन्होंने वो भी नहीं खाया। जब मुलाकात करी जेल में जाके, कहा ये तो हलाल खाना था, मेरे हाथ का बना हुआ था। लगे मैं मानता हूँ हलाल खाना था, तुम्हारे हाथ का बना हुआ था, लेकिन हाथ किसके ज़रिए आया था मेरे पास? जेलर के ज़रिए आया था। वो तो नापाक हाथ थे, कितना बड़ा मुजाहिदा था। अल्लाह वालों ने कई दिन भूखे रह के इबादत करी है समझ भाई। और उसके बाद उन्हें ख्वाब नज़र आया, अल्लाह ताला के दीदार हुए ख्वाब में। कहा अल्लाह मियाँ मैं आपके दीदार चाहता हूँ। देखो एक अल्लाह वाला कुर्ब मिल चुका, फिर भी कह रहा है अल्लाह मियाँ मैं आपके दीदार चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, हम दीदार ऐसे नहीं दे देते, हम दीदार अपना दीदार उसको देते हैं जिसका दिल बर्दाश्त हो, मतलब दिल खस्ता हो चुका हो, चारों तरफ से टूट चुका हो, कोई उम्मीद ही नहीं कहीं से, और परेशान हाल हो, दिल चारों तरफ से दिल टूट चुका हो, उसमें हम उतरते हैं, उस दिल में हम उतरते हैं भाई। हर किसी के दिल में नहीं उतरते। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं अल्लाह तबारक तआला, समझ रहे हैं।
मार्फत धीरे धीरे कामिल होती है, होती चली आती है, और नया अल्लाह ताला आजमाइश डाल देते हैं, और तरह की आजमाइश डाल देते हैं। सब्र कितना कर रहा है बंदा, ये देखते हैं। शिकवा भी कर रहा है ज़ुबान से कि अल्लाह मियाँ कितना परेशान हूँ, मेरी तकदीर ऐसी लिख दी। तमाम शुक्र अदा बजा ला रहा है, जिसम को तकलीफ हो रही है सब्र कर रहा है, और दिल से मुतमईन है, दिल से मुतमईन है, शाकिर है दिल। तो तब जाके अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देते हैं। समझ में आई बात? कितना बड़ा बर्दाश्त का मादा है। एक बच्ची 4 घंटे में ट्यूशन पढ़ के आ रही है, 7th क्लास की, और सारा दिन मोबाइल पे मैसेज करती है, मैसेज पढ़ती है, और ट्यूशन 4 घंटे में आ रही है। तो अम्मा क्या कह रही है, हमारी बीवी ऐसी जाएगी रोगले नल्ले। तो भाई मैं क्या पागल हूँ, इनसे भुगतूँ, इनसे लड़ूँ? तो अल्लाह इनसे लड़ने के बाद सीधा पकड़ के सारी गली वाले मोहल्ले वाले साथ मिल के सीधा पागल खाने से ख़त्म हमेशा के लिए। मैं पागल हूँ, मैं खामोश होकर बैठ रहा हूँ। आराम से बैठो, आराम से। हालत बदलने हैं भाई, तगय्युर होना है। समझ में आई बात? कहा ना, बीवी की कोई गलती नहीं है, इसको तो बड़ों ने बिगाड़ा है, बड़ों ने बिगाड़ा है, बीवी की कोई गलती नहीं। अल्लाह ताला से हमेशा याद रखना, ये दिमाग दिया है ना, ये सोचने के लिए भी दिया है, खाली दिमाग को कमाने के लिए नहीं दिया। एक नोट कमाओ किसी तरह भी, हराम से हलाल से, उसके बाद इसका इस्तेमाल वहीं करो। इसी बहुत कुछ दिया अल्लाह ताला। बहुत बड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि हो सकता है फिर मैं अब खामोश कर दें अल्लाह ताला मुझे, क्या तुम खामोश हो जाओ, बेकार मुर्दों को समझा रहा हो, ये सब मुर्दे हैं। जिसको मैंने हिदायत देनी होगी दूंगा हिदायत, अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको देनी होगी इसी तकलीफ से हिदायत पालेंगे सब, और ये इनको ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, रोटी खानी मुश्किल है। अल्लाह ताला अल्लाह माफिज ना ऐसा वक्त ना है। अल्लाह ताला पूरे बाहिमी उल्फत, इतिहास, मजहबी सकावत, हिंदू भाईचारा, और एक गंगा जमुना की तहजीब बने आपस में, और मुल्क को हम करप्शन से ख़त्म कर दें सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज़ उठाएँ। हैं, क्या खाकी हो या नीली हो या पीली हो, गलत है तो खुद ही उतार के फेंक दें उन्हें। आमीन सुमामीन, बाखुर दावाना वल